ہیں جب ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے بندہ کو، پاسٹر کامران کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئیں گے اور ان کی مسز بھی سامنے آئیں گی اور ان کو ہار پہنائیں گے پاسٹر ولسن، اور ان کی مسز کو ہار پہنائیں گی مسز ہارون. تو زوردار تالیوں کے ساتھ ہم خدا کی خادمہ کو، خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی تالیاں جو ہیں وہ رکنی نہیں چاہیے، زوردار تالیاں بجائیں گے. یس ہاللیلویا. زوردار تالیوں کے ساتھ پریز ہاللیلویا. دوسرا ہار جو ہے وہ خدا کے بندہ کو بھائی سیمول پہنائیں گے آپ کی زوردار تالیوں میں. زوردار تالیوں میں. تھینک یو سو مچ. تو میں آپ کو تھوڑا سا خدا کے بندہ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. ان کی ملاقات جب میں لاسٹ ٹائم لاہور گیا MGM چرچ میں، پاسٹر پرویز وکٹر کے چرچ میں، تو وہاں ان کا میسیج تھا. انہوں نے بڑا ہی خوبصورت، بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند کے کلام کو پیش کیا. میں نے بہت زیادہ بلیسنگ، برکت کو ریسیو کیا خداوند کے کلام کو. آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تھینکس گیونگ پر میسیج دیا تھا اور بڑا ہی بابرکت میسیج تھا. تو میرا دل چاہا کہ جب میں واپس کراچی اپنے چرچ جاؤں تو میں ان کو انوائٹ کروں اپنے چرچ میں. تو میں دل کی شکر گزاری سے، دل کی تہا سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری گزارش کو، ریکویسٹ کو قبول کیا. اور یہ بڑی دور سے ہیں، تحصیل ٹاؤن لیاری سے یہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے. تو ایک بار زوردار تالیاں بجائیں گے ان کے لیے کہ یہ یہاں پر آئے اور خدا کی خدمت کو سرانجام دیں گے. اور دوسری بات بتاتا چلوں کہ یہ ان کا اپنا سکول بھی ہے اور یہ اپنے سکول میں پرنسپل بھی ہیں اور یہ بچوں کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ اس کے نام کو پرچار کرتے ہیں اور خداوند کو سرفراز کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے تو مجھ میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادوں کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا. تو جب آپ خدا میں مسرور رہتے ہیں تو خدا آپ کے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آپ کو سرفراز کرتا ہے. ہاللیلویا. تو آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے بندہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں گے اور خدا کے کلام کی خدمت کو سرانجام دیں گے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے جلالی قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام اور آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے. جتنی یہاں پہ مائیں موجود ہیں، خداوند ان کو زندگی دے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اولاد کی جیسا خدا چاہتا ہے ان کی تربیت کر سکیں اور ان کی اولاد ان کی تابعداری میں رہے. آج جیسے کہ مدر ڈے ہے، مجھے جب بھائی نے کہا کہ میسیج کے لیے، تو میرے مائنڈ میں مدر ڈے نہیں تھا اس وقت بالکل بھی، اور میں کچھ اور جو تھا کلام کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا. لیکن ہمارے بیٹے نے، خالد بھائی نے یہ کہا کہ مدر ڈے کے حوالے سے ضرور. پھر خدا سے چاہا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم کیا. اچھا، 2-3 چیزیں میں پہلے پوچھنا چاہوں گا. کوئی انسان جو ہے اس اپنی مرضی سے عزت اپنی بنا سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے اپنی عزت بنانا چاہے، اس کو یہی ہر وقت لگا رہے کہ مجھے پذیرائی ملے، مجھے عزت ملے، میری واہ واہ کی جائے، میں جہاں پر جاؤں یا میں کہیں پر بھی ہوں میری جو ہے رسپیکٹ بننی چاہے، چاہے وہ غیر ہوں چاہے وہ اپنے ہوں. کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ یہ عزت کا جو توڑا ہے نا، یہ بلیسنگ جو ہے، یہ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. اور خدا نے اس کے کچھ پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے، کچھ لوازمات بتائے، کچھ طریقے کار بتائے جو ہمیں کرنا ہے. اور جب ہم وہ کریں گے نا تو پھر ہمیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہوتی، عزت خود بخود ہمارے آگے آگے رہے گی. ہاللیلویا.
तो आज हमें ये देखना है कि माँ का जो हम ताज़ीमन इस दिन को मनाते हैं, ये दिन की वैसे तो हिस्ट्रीज मुख्तलिफ तौर पर बताई जाती हैं, ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, लेकिन ये जो एक औरत थी जिसका नाम एना मारिया था, एना मारिया जो थी ये वो औरत थी जिसका ताल्लुक जो है अमेरिका से है। वो जो हमारी फ़ौज, उनके वहाँ के फ़ौज के लोग होते थे, उनकी बड़ी वो बोलते थे कि ये लोग जो है कौम के लिए, मुल्क के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन इनको कोई इतना ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट जो है माँ से दूर है, बहन से दूर है, बेटियों से दूर है, वो बीवियों से दूर है। तो इनकी तीमारदारी जो कि माँ कर सकती है, बहन बीवी बेटी कर सकती है, वो तो इनको मिलती नहीं है। और पता नहीं सालों साल बाद जाके, कोई 2 साल बाद, कुछ साल बाद, कुछ 6 महीने बाद जाके अपने घर जाता है। और वहाँ जाके तो उसने ये चीज़ सोची कि मैं क्या करूँ, इनके लिए जो है इनकी खिदमत की जाए। और उनकी हर तौर से कहीं चोट लग जानी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई खाना पका के देना है, कोई कपड़े धोकर देने, मुख्तलिफ तौर से वो उनकी क्या करने लगी है, खिदमत करती रही। और जब उसकी बेटी जो है, उसका नाम जो है वो है एना मैरिक। एना मैरिक जो है, जब वो जवान हुई तो उसने देखा कि मेरी माँ ये बहुत कुछ इस तरीके से किया करती थी, जिसके बायस जो है मुझे चाहिए कि मैं उसको तज़ीम दूँ कि मेरी माँ ऐसी खिदमत करती थी, जो कि वो बताना चाहती थी कि एक औरत का, एक माँ का किरदार कैसा होना चाहिए। उसने उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश की, और जब वो सेलिब्रेट करने लगी है तो उसके साथ जो उसका शौहर था और दीगर लोगों को ये चीज़ पसंद आई कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारी माएँ हमसे दूर होती हैं, या माँ का प्यार उस तरीके से जो हम चाहते हैं नहीं मिल पाता, तो हम क्या करें। और ये बात जब उनको पसंद आई कि इसने उस तज़ीम को, उस वक्त को, उस दिन को इस तौर से बनाया है, तो उसने पहले अपनी फैमिली के तौर पे, फैमिली के बाद एक ख़ानदान बनाने लगे। और ख़ानदान के बाद वो इतनी ये चीज़ बढ़ती गई कि 1918 में इसको जो है बहुत बड़े एक एरिया ने मनाया है। और फिर 1910 के अंदर इसे आलमी तौर पर मदर डे का नाम दे दिया गया, और 1910 से आज तक जो है ये दिन मनाया जा रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हमें ये देखना है कि हम कैसी औलाद बना रहे हैं, कैसी औलाद हमारी है, और उनको तैयार हम कैसे कर रहे हैं। क्या उनसे हमें इज़्ज़त लेने की ज़रूरत है, या वो वाकई हमें इज़्ज़त देती है। कई दफ़ा हम इज़्ज़त लेने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हमारी औलाद जो है वो हमारी उस दौर से इज़्ज़त करती नहीं है। खुदा का बड़ा अजीम हुक्म है। 10 हुक्मों में से जो दुनियावी 6 अहकामात हैं, उसका पहला हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना है, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये खुदा का हुक्म, और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। अब ये तो हुक्म है, और खुदा को जो है ना उसकी हुकूमत जो है ना वो पसंद नहीं। वहां पर आदम और हवा से हुआ क्या था, खुदा की हुक्म हुई है। इब्लीस हमसे चाहता है कि हम खुदा के मुखालिफ जाके वो चीजें करें जो कि खुदा के हुक्म को तोड़े, उसको रद्द करें। लेकिन खरूज 21 की 15 में फरमाता है, और जो कोई अपने बाप, अपनी माँ या अपनी माँ को मारे, कतई जान से क्या किया जाए, मारा जाए। आज ऐसा क्या होता है, आज हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि माँ बाप के साथ किरदार अच्छा नहीं है। आज अगर हम बाहर के ममालिक में देखते तो वहाँ पे क्या बनाए गए, जहाँ पे बुजुर्गों को रखा जाता है, ओल्ड होम बना दिए गए। आज वो माँ बाप को अपने पास रखना क्या नहीं पसंद करते, वो बोलते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम बहुत ही एक तरह के लालची टाइप के लोग बन चुके। जब तक मेरा मुफाद मेरे माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो मैं बड़ा मामा जी पापा जी करता रहूँगा। लेकिन जब मुझे पता चलेगा ना कि अब मेरी जिम्मेदारी आ गई है, तब जो है मैं चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी मेरा दूसरा भाई ले ले, ये जिम्मेदारी मेरी बहन ले ले, मैं ना ला।
मुझ पर ये जिम्मेदारी माँ बाप की जो है वो मुझ पर ना आए। लेकिन खरूज 21:17 में कहता है जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई क्या किया जाए, मारा डाले। अब मार डाला जाए तो क्या करना है? हम यहाँ पर लानत क्या है, हम उनके हुक्म नहीं मानते, उनके साथ उनको सताने वाले काम करते हैं, लेकिन वजह क्या है कि ये हो क्यों रहा है? यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस माँ से कोई गलती हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को जो करना चाहिए था उसके अंदर कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से शायद आज उसको वो दिन देखने पड़ रहे कि औलाद उसकी ताबेदारी नहीं कर रही। तो हम देखते हैं कि हम अपनी औलाद को, खास तौर पे मैं माँओं से बात करूँगा कि माएँ जो हैं वो इज्जत चाहती हैं कि उनकी औलाद उनकी क्या करे, इज्जत करे, लेकिन इज्जत उनकी करे उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। अब हमने देखना कि हमने अपनी औलाद क्रिएट कैसे की है, वहाँ पर उनकी तरबियत कैसी की है, जैसा खुदावन चाहता है। इंसाल की किताब में कहता है तो अपने लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, पूरे होने तक वो उससे ना मुड़ेगा। लेकिन अब तरबियत करनी कैसे? हमें एक हस्ती नजर आती है और वो हस्ती है मूसा। मूसा जो है वो, अगर हम खरूज 2 बाब से जब उसकी उस तफसीर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि फिरौन की बेटी ने उसे कहा, किसे कहा है? मूसा कहाँ पे गया है? पानी के अंदर जब वहाँ पे पहुँचा है और उसकी बहन मरियम ने उसको देखा कि ये वहाँ पर फिरौन की बेटी तक पहुँच गया और वो दौड़ी दौड़ी गई उसके बाद कि मैं इसके लिए क्या करती हूँ, दूध पिलाने के लिए क्या लेकर आती हूँ, किसी औरत को, अबरानी औरत को। उनको पता है ये बच्चा कौन है, अबरानी है, और अबरानी औरत को लेकर आएंगे। अब फिरौन की बेटी क्या कहती है? कहती है फिरौन की बेटी ने उसे कहा जा वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को ले आई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा कि इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला है। अब यहाँ पर जो है वो माँ है जिसके बदन से मूसा ने जन्म लिया है, मूसा पैदा हुआ है, और वहाँ पर इतने कठिन हालात हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि वहाँ पर लड़कों को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। यहाँ तक कि वो जो दाइयाँ थी उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन उसने फिरौन ने अपनी कौम के लोगों को ये कह दिया कि तुम इन पर चढ़ जाओ और इनको क्या कर दो, हलाक करो। लेकिन इस माहौल के अंदर खुदा ने किसको बचाया? मूसा को बचाया, अपना हाथ बढ़ा के मूसा को। लेकिन अब मूसा बच तो गया है, लेकिन मूसा मरने से बच्चे को क्या पता? ये एक कोरी रिवाज है, सफेद कागज जो होता है बच्चा होता है, इसमें जो लिख देंगे वो लिखा जाएगा। अच्छा लिखेंगे अच्छा लिखा जाएगा, बुरा लिखेंगे बुरा लिखा जाएगा। लेकिन अब इस मूसा पर जो बच्चा है इस पर भी कोई लिखावट के लिए कोई शख्सियत चाहिए थी। वो तो फिरौन के घर में जहाँ पे बुतों का घर है वहां पर है, उसको हर तरफ बुत ही बुत नजर आएंगे और वो बुत परस्ती सीखेगा, वैसी अमाल सीखेगा। लेकिन ये खुदा का बंदोबस्त था। वहां किसको पहुंचा दिया? उसकी माँ को पहुंचा दिया। और माँ ने क्या किया? माँ ने उसको बताया है कि ये जो है ना, ये तुझे रंग बिरंगे लोग और बुत नजर आ रहे हैं, ये तेरे खुदा नहीं है। तेरा खुदा कौन है? यहोवा खुदा तेरा खुदा है। और तेरे लोग कौन हैं, तेरी पहचान क्या है? उसकी तरबियत जैसी खुदा की मर्जी थी वैसी माँ ने की है। और जब खुदा की मर्जी के मुताबिक उस माँ ने अपने उस बेटे की तरबियत की है तो वो एक ऐसा सूरमा निकला है कि खुदा का नबी बना। हालेलुया। और उसने अपनी कौम को क्या किया है? वहां से निकाला, रिहाई बख्शी है और उसको खुदा ने इस्तेमाल किया। और याद रखें, जब हम अपनी औलाद को खुदा की मर्जी के मुताबिक परवरिश करेंगे ना तो फिर हमें ये नहीं दुख करना पड़े, मेरी सुनता नहीं है, ये काम धंधा नहीं करता, ये घर के अंदर जो इसकी वजह से माहौल क्रिएट होता है वो ठीक नहीं है,
یہ نشے وغیرہ کرنے لگ گیا ہے, یہ کوئی جوا کھیلنے لگ گیا, اس کی صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے اندر نہیں ہے. ماں پریشان ہوتی کہ کیوں پریشان ہوتی کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسا بنے, اچھا بنے, وہ ایک نیک شخص ہو. اور اس کی وجہ سے جب ہمارا کوئی اچھی اولاد ہوتی ہے اور وہاں سے کہیں سے سننے کو ملتا ہے نا کہ یہ اس پاسٹر صاحب کی والدہ ہے, کیسا گھر ہوتا ہے, لیکن کوئی بدماش ٹائپ بندہ ہوتا ہے اور بھی والدہ ہے, پھر کیسا فیل ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ وہ یہ منڈا جوا کھیل دیا سی بھی ماں ہے, کیسا فیل ہوتا ہے. بہت ہی کربناک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا, میری بیٹی کا جو مستقبل ہے وہ ایسا اچھا ہو کہ جو اس کی زندگی صرف مستقبل اس کا روشن نہ ہو بلکہ یہ باعث برکت اور باعث عزت ہو اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہے آج کا ماحول, آج جو ہے وہ سالوں سال بعد جا کے مدر ڈے آتا ہے نا, وہ اولڈ ہوم میں جاتے ہیں, نئے کے بڑے کپڑے بھی لے کے جائیں گے, کوئی پھول چھول بھی لے کر جاتے ہیں اور چیزیں لے کر جاتے ہیں, وہاں پہ ماں باپ سے ملتے ہیں. لیکن کیا وہ مدر ڈے والے دن ہی صرف ماں ہے, باقی پورا سال کی, باقی پورا سال جو ہے شاید آپ کو اپنے اعتراف میں, اور کئی بار تو ہمیں کئی اپنے گھروں پہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ اولاد ماں باپ کو گالیاں بھی دی, اولاد ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دی, اور اس طرح کا دکھ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑ دی. جو خدا ہم سے چاہتا تھا کیا ہم نے اس کو پورے طور سے کیا ہے یا نہیں کیا. احبار 18:8 میں کہتا ہے تو اپنے, اب بڑی کئی دفعہ جو نا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں. سب سے اتم درجہ اس دنیا کے اندر اگر ہے تو آپ کی نظر میں وہ کون, سب سے خدا کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے اتم درجہ کسی کا ہو سکتا ہے تو کون ہے, کیا لگتا ہے؟ نہیں سر, مرد سے اوپر ماں ہو ہی نہیں سکتی, ورنہ خدا ہی غلط ہو جائے. باپ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہ چیز یاد رکھیں. اور ابلیس چاہتا ہے کہ میں ماں کو اوپر اور باپ کو کیا کر دوں نیچے. یہ کوئی نہایت ہی بیکار ترین اور گھٹیا ترین شخص ہے جس نے یہ مکالمہ نکال دیا لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ نہیں, ہو ہی نہیں سکتی لیڈیز فرسٹ. یہ خدا کے مخالف جانے کے لیے جو ہے نا ان چیزوں کو کریٹ کیا جاتا ہے. اور خدا پوری بائبل کو پیدائش سے اٹھائیں مکاشفہ تک چلے جائیں, کہیں پر آپ کو لیڈیز فرسٹ نہیں ملے گی. خدا کہتا ہے کہ عورت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ مرد کے لیے. اور عورت, مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت کس سے ہے؟ مرد سے ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کس کی صورت ہے؟ کس کی صورت ہے؟ خدا کی صورت ہے. ہاللیلویا. وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, اور ہم خدا کی صورت اور اس کے جلال کو جو ہے عورت کے نیچے لے آئے, ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کس کا جلال ہے؟ مرد کا جلال. مرد خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, لیکن عورت مرد کا جلال ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اوڑھنی اوڑھے, وہ محکومیت کا ایک نشان اپنے سر پہ. یہ اچھا یہ دوپٹہ جو لیتے ہیں, جو اوڑھنی اوڑھتے ہیں, اس کے لیے میں تھوڑی سی چیز پوچھنا چاہوں گا. عورت غلام ہے یا کیا ہے؟ ہاں, عورت غلام نہیں ہے, پہلے تو بات یہ. لیکن تابع داری کرنا جو ہے, ہم جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کے کیا غلام ہوتے ہیں؟ نہیں. لیکن باوجود ان کی ہر بات کو اون کرنا, ان کی بات کی تابع داری کرنا, ان کی پیروی کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہی والا فرض عورت کے اوپر مرد کے لیے, کیونکہ اس کو ایک سزا ملی ہے. سزا کیا ملی تھی؟ پیدائش 3 باب میں اس نے کہا ہے
کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری نسبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی, اور آخری بات وہ تجھ پر کیا کرے گا, کیا کرے گا, حکومت کرے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ کسی انسان نے نہیں کہا. اس نے کہا وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آج کی حکومت جو ہے عورت ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی حکومت عورت کے بس سے باہر ہے اور وہ نہیں چاہتی. اور آپ کو میں بتاؤں, میں اپنی والدہ یا میں اپنی دادی دادا یا یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, کیا ہوتا تھا اب کسی محفل میں, کسی خاندان کی گیدرنگ کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ شوہر آتا ہے اور عورت کیا کرتی ہے, خیال کرنا میرے بندے کو میں کھانا پسند نہیں آئی, وہ دیکھو آج سے تسی بھی چڑکا کھاؤ گے تو مینوں بھی چڑکا کھواؤ, ایسے کہتے ہیں. لیکن آج کیا ہوتا ہے, آج کیا ہوتا ہے, کسی بھی محفل میں گئے یا ہم کسی خاندانی گیدرنگ میں بیٹھے, وہاں پہ شوہر نے بیوی کو کہہ دیا کہ یہ کیا کرو, یہ چیز نہیں کرو. اچھا کہ بیوی نے تیرے سامان زمین ایک کر دینا, میری کشتی کر دیتی تو ساتھ میں کی کر دیتی ہے. اور پھر یہی کام جو عورت مرد کے ساتھ کر رہی ہے, یہ کام اولاد عورت کے ساتھ اور باپ کے ساتھ کرتی ہے. باپ کہیں پر بھائی یا ماں کہیں پر ڈانٹ دینا بچے کو, میرے دوستوں کے اندر آپ نے آ کے مجھے یہ کیا کہہ, آج ہم اپنی عزت اور دنیا کے اندر سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو لالچ ہے نا, وہ عزت کا ہے. جان کا صدقہ, جان کا صدقہ کیا ہے, مال. جان کا صدقہ مال ہے, اور عزت کا صدقہ کیا ہے, جان. عزت کے پیچھے جان جاتی ہے. لیکن آج ہم لوگ جو ہیں اسی عزت کے اندر پھنسے. ابلیس نے ہمیں اس عزت کے اندر ایسا گرفتار کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میری مدد کر. اچھا دنیا جو ہے, عورت کی دنیا ہوتی کتنی سی ہے یہ تو بتائیں ذرا. عورت کی دنیا کتنی, میں اور میرا گھرانہ. عورت کی دنیا سے نا کتنی سی ہے, میں اور میرا گھرانہ. لیکن مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو میجورٹی مرد ملیں گے جو کہ دوسروں کی بھی پرواہ اور فکر کرتے, لیکن وہ کہتے سارے میری مدد کریں. اور میں کسی بھی اب وہ کہیں گے کوئی آ جاتا ہے, کوئی رشتے دار ہی آ جائے, یا میرے بھائی خرچہ ٹھیک کرا ہے کیا رکھے, ہاں او بھائی اس کو واپس بھیجو, نکالو گھر سے بھیجو, اور 3 دن ہو گئے اور جانا نہیں ہے. اور وہ وقت یاد نہیں کہ شاید اس شخص نے جو آپ کے گھر پر آ کے رکا ہے, ایک وقت ایسا تھا انہیں تا رومی نے تو بہت اپنے کار رکھے آسی. ہاللیلویا. ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہم پر رحم کیا تھا, ہماری مدد کی تھی, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے پیرامیٹرز کے مطابق فٹ نہیں آتے نا, تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرواتا ہے. ایک جگہ ہے وہاں پر خادم نے ایک نے بتایا کہ کچھ لوگ تھے اور بچے تھے, انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اسے جا کر بڑا مارا پیٹا اور اسے جا کر پھینکنے گئے. تو جب اس کو پھینکنے گئے گاؤں سے باہر زمینوں کی طرف, تو جب پھینک رہے تو کہہ رہے نا مینوں اتنے نہ سٹنا, تھوڑا پناہ کر کے, کیونکہ اتنے میں اپنے ابے نوں سٹیا سی. تو جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہاؤ از دس پاسبل کہ ہمارے ساتھ ویسا نہ ہوگا. ہم جہاں پہ موسیٰ کریٹ کر رہے ہیں, ایک اور بڑی ہستی نظر آتی ہے, سیموئل نبی. ہنا جو ہے نا, اس نے بڑی ہی رو کر کس سے, خدا سے کس کو مانگا ہے, سیموئل کو مانگا. لیکن وہ تو بڑی دیر سے پانچ تھی, اس کی اولاد نہیں تھی, اولاد ہو نہیں رہی تھی. اب ہی جا کر کیوں اولاد ہوئی ہے, وجہ اس کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ خدا جب کچھ چاہتا ہے نا, ہم خدا کی مرضی کو اپنی مرضی میں یا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل ہونے نہیں دے رہے. خدا چاہ رہا تھا کہ مجھے میرا ممسور چاہیے, میرا خادم چاہیے, میرا بندہ چاہیے, جس کو میں نے اپنی قوم کے لیے استعمال کرنا ہے, جسے میں نے نبی اور پیغمبر بنانا ہے. وہ تو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنا منڈا چاہیے. لیکن جب ہنا نے یہ کہا نا کہ یہ میں کس کو دے دوں گی, وہ رب ایک سننا چاہتا سی کہ میں ان کی گردن کی تیری نظر کر دوں گی. اور جب ہنا نے یہ کہا, اس کو جواب مل گیا اور اس کے وہ بیٹا پیدا ہوا
जो कि सैमुअल नबी था, इतनी अजीम हस्ती थी जो कि बयान से बाहर है खुदा। और फिर उसके बाद जो उसने खुदा को दे दिया, उसके पास औलाद रही या ना रही? हालेलुया, उसको भी खुदा ने मसीह बेटे और बेटियां दी। क्या हम खुदा की मर्जी को जान रहे हैं कि खुदा एज माँ होते हुए मुझसे क्या तकाजे रखता है, मुझसे क्या मांग रहा है? अगर मैं खुदा के तकाजों को शायद पूरे तौर से पूरा ना करूंगी तो शायद जो मेरी आरज़ू है, जो मैं तसल्ली और खुशी और इत्मीनान चाहती हूँ, वो शायद मुझे ना मिले। अब क्या होता है, एक आपको हस्ती नजर आएगी जिसका नाम है लैया, याकूब की बीवी है लैया। लेकिन उसके साथ क्या की गई है? नफरत की गई। उसके साथ क्या किया गया? ज्यादती की गई है। उसके साथ भेदभाव रखा है। रखा किसने? राहल। याकूब और राहल ने मिलके लैया के साथ नफरत की है और खुदा को ये बात नहीं पसंद है। चलो जी, खुदा इसका इंसाफ करेगा ना, असी आप ही इंसाफ करें तौर पर हम अपने बच्चों को सिखाते कि क्या है, ये देख ले तेरी दादी मेरे साथ क्या करती है, तेरा दादा मेरे साथ क्या करता है, तेरा चाचा मेरे साथ क्या करता है, तेरी चाचियां, क्या वो जो कुछ भी कर ले, आप क्या कर रहे हो? और जब ऐसा कुछ होता है तो होता क्या है, हम बच्चों के अंदर ऐसी मुखालफत और नफरत अपनों के लिए पैदा करने, किसी दूसरे के लिए नहीं पैदा करते, अपनों के लिए पैदा करें। और जब अपनों के लिए नफरत पैदा होती है ना, तो फिर उनसे कई बार ऐसी गलतियां तो ऐसे भयानक काम होते हैं। लैया ने बताया होगा ना किसको? लाबन को, कि मेरे साथ, और लाबन देख भी रहा है, लाबन देख भी रहा है। यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए? हमें ये बताना चाहिए कि बेटा, खुदा की जो मर्जी है, मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ और मेरे साथ अगर कुछ जो तू और मैं चाहते थे नहीं भी हुआ ना, तो खुदा पे भरोसा रख, वो सब कुछ करने पे कादिर है। तो खुदा सब कुछ करेगा। लेकिन उसी लाबन ने जाकर क्या किया? अपने बाप के बिस्तर को नापाक किया। और खुदा फरमाता है, वो एक आयत है, तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, एहबार 18:8 है, पर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। अब एक और चीज, और जो शख्स 20:11, जो शख्स अपनी सुपेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। अब ये काम किया किसने? ये काम जो लिखा है वो किया किसने? याकूब के पहलौठे बेटे लाबन ने किया। क्या लिखा है? आए रोबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसवात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजस किया। रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। अब ये वजह थी कि ब्लेसिंग, आपको पता है बरकत जो है ना, बरकत का जो पैरामीटर है जो हमें बाइबल में नजर आता है खुदा की, या तो वो पहलौठे बेटे को मिलता है या सबसे छोटे बेटे को मिलता है। दरमियान वालों को कभी बरकत मिलते देखी? क्या वजह है? यहूदा जो था ना तो पहलौठा था ना छोटा था। वजह क्या है? वहां पे पहलौठे को भी छोड़ दिया, छोटे को भी छोड़ दिया, विचकार आकर जो ये बरकत मिल रही है, इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह यह नजर आती है कि जो खुदा के मुताबिक नहीं था उसको बरकत नहीं मिली। रोबन ने क्या किया था? ये नजस काम किया था। और शमाउन के लिए और लावी के लिए याकूब क्या कहता है? शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। वो क्या थे? जालिम थे। उन्होंने किसको? एक आदमी को कत्ल किया था, और पूरी दीना के साथ जिन्होंने कुछ गलत किया था, उन्होंने जाके क्या किया? उन सबको मार दिया था। लेकिन चौथा बेटा यहूदा था, जो खुदा के
मुताबिक निकला था और खुदा ने उसको कहा कि इसको क्या कर दे, बरकत दे। और वहाँ से यहूदी कौम चलती है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को वजाहत के साथ देखने की ज़रूरत है। अस्तिशवा 21-28 में कहता है, अगर किसी आदमी का, अच्छा अभी मेरे भाई ने एक कुछ शेर बोला था, वो माँ हंसते थी या मुस्कुरा, क्या कहा था थोड़ा सा, वो एक बड़ा अच्छा था शेर का, मैं कुछ अनजाने गलती हो जाती, माँ की कहते थे भुला देती है। बुला देती है या मुस्कुरा देती है। आज भी जो अनजाने में गलतियां होती हैं और इसमें मुस्कुरा देना जो है ना, वो हमारे लिए आगे चल के कितना, वो ये आप देखो इन्हें गौर करिए, है कितना प्राउड फील कर रहे होते हैं, इन्हें की कटी है, गौर कटी है, निके ने यार इसने ये कौन सा अच्छा काम कर दिया। इस तरह की कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कई बार जो है हमें तंबीह करनी चाहिए, लेकिन हम उस पर खुश होते हैं। इस्तिशना 21:18 क्या कहती है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और सरकश गर्दनकश बेटा हो तो अपने जो अपने बाप या माँ की बात ना माने, क्या करे, बात ना माने। तो हम क्या कहते हैं, कोई बात ना मानने वाला ना, हमारा बच्चा गलत भी होता, हमें पता होता गलत, लेकिन फिर भी मन लेता ना जाके ऐसी डांट पड़ी, और बेटे को कहते हैं तू उन्हें जाके मारे क्यों नहीं यार, वो ये क्या कर रहे हैं हम, अपने बच्चे को हम किस राह पे लेके जा रहे हैं। आज मैंने उससे दूसरे को थप्पड़ मरवाया है, कल को वो इससे बढ़कर कुछ करेगा और पता चले बाहर जाकर उसके बाद वो कोई गुंडा या डाकू बन जाए, फिर कैसा लगेगा हम। लेकिन आज हमने उसको सिखाया है क्या करना, माफ करना। किसको माफ करना है, दुश्मन को। दुश्मन कौन होता है, जो आपके मुखालिफ होता है, जो आपके साथ ज्यादती करता है। लिखा है गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनकी तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकालकर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें। क्या करें, अर्ज करें। आज एक पादी साहब तेरा ना किसी भैन के बच्चे को कह रहे ना कि भैन जी इन्हें है कीता यार कि ताके अपने बड़े चंगे हैं। अच्छा ये देख रहे कि वो हमारी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली अगले के ऊपर बोलना ताके बड़े चंगे ताके या कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। क्या है, उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें, वो मर जाए। आज ये तो बहुत ही बड़ी बात खुदा ने कह दी है। वो शराब पीता है तो अपने पैसे ने पीता, तानू की लगे, वो बुए च बैठ के पीवे या चौक से बैठ के पीवे, तानू की लगे, तानू कुछ कही ना। नहीं, हम अपनी औलाद को किस डगर पर लेकर जा रहे हैं, हम तैयार क्या कर रहे हैं। जैसा बीज होगा फल भी तो फिर वैसे ही होगा। हमने बीज जो है वो कड़वा बो दिया है और फल हम चाहते हैं कि मीठा मीठा निकले। ये कैसे हो सकता है, इट नॉट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब करना क्या था, खुदा चाहता है कि तू मेरे असूलों पर चले। असूलों पर चलने वाला कौन है, हम गैर कौमों को बड़ी हकारत से देखते हैं। एक गैर कौम, यहूदियों की भी गैर कौम जो है वो कौन थे, अमोनी और मदियानी जो है, ये आपको मुआबी जो है, ये सारे गैर कौम लोग हैं। लेकिन इनमें से एक बड़ी ही खूबसूरत बात हुई है, और वो बात क्या हुई है, रूत एक औरत है। रूत एक औरत है जो कि किससे, गैर कौम से। लिखा है कि वो जब नोमी के दो बेटे थे, उनके साथ एक उर्फा है और एक कौन है, रूत है। दो औरतें हैं जो कि दोनों जो हैं मुआबी हैं, और मुआबी औरतों को ब्याह दिया अपने बेटों के साथ, और दोनों बेटे क्या हो गए, मर गए। अब हुआ क्या, अब नोमी ने कहा मेरा और तो कोई बेटा है नहीं जिसके साथ मैं तुम्हें ब्याह दूं, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओ अपने अपने
घर को चली जाऊं, तो उर्फा जो है वो क्या करी चली गई है, वापस चली गई है। वो खुदा की कौम में एंटर तो हुई थी, लेकिन फिर वहां से छोड़कर क्या चली गई, वापस। और वापस किन में गई है, मोआबी जो है वो क्या थे, बुत परस्त लोग थे, वो बुत परस्ती की तरफ दोबारा लौट गई। लेकिन रूत ने क्या कहा है, अच्छा जब हम खुदावन की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदावन का इतराफ और इकरार करते हैं कि तू ही हमारा खुदावन है, तो क्या क्या, अब रूत यहाँ पे क्या कह रही है, रूत ने कहा, रूत पहला बात और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूत ने कहा कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, तू मेरी मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा। किसका इकरार किया उसने, हालेलुया। और जब खुदा का इकरार किया ना उसने, तो उससे हुआ क्या है, कई दफा हम जो ना कुछ देखते कि ये इसका करदार जो था वो अच्छा नहीं था, ये औरत बुरी थी, ये मर्द बुरा था, ये ऐसा था, लेकिन जब खुदा का इकरार करके खुदावन में आ जाते हैं ना, तो फिर खुदा ये जानता है कि इसकी पिछली जिंदगी की वजह से लोग अभी भी इसको सताएंगे, इसको धुतकारेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन खुदा फिर अपना मिशन ही उसी बंदे से शुरू कर दिया। और रूत से क्या किया, कौन पैदा हुआ रूत से, अव्वा पे ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी, और फिर कौन आ गया यसी में, ना अपने लड़ी हुई फल। तिमर को लोग, शायद यहूदा जो था वो ये जानता कि तिमर तो मेरी बहू थी, इसने मेरे साथ ये क्या काम किया है, और इसकी वजह से लोग भी उससे नफरत कर सकते थे, और शायद यहूदा भी उसको छोड़ देता था, लेकिन खुदा ने अपना मिशन ही तिमर से शुरू कर दिया। यीशु मसीह तक की लड़ी तिमर से आती है, यीशु मसीह तक की लड़ी जो है वो कहां से आ रही है, दाऊद से आ रही है, इसी रूत से आ रही है, राहब फाशा जो है वहीं से। लेकिन वजह क्या थी कि वो खुदा की मर्जी पर चले थे। आज हम अपनी औलाद को जो है छोटी छोटी मुश्किलात से, तो हम सख्तियों से तो बचा रहे होते, लेकिन ओ मेरे पुत्र को ठंड ना गर्मी ना लग जाए, छुट्टी कर ले, चल काम पे ना जा, पढ़ाई। और हमारे बेटे जो है अक्सर वो काम क्या देते, मर के मैट्रिक की मुश्किल ना करते हैं, कहीं मैट्रिक तक भी नहीं पहुँचते, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पहुँचते। वजह क्या होती है, उसके पीछे माँ बाप का ही करतार है, और माँ बहुत ही सकी होती है, प्यो ना लड़ पैंदी है, प्यो ना लड़ पैंदी है, हाँ तुसी हर वेले मेरे पीछे ही पए रहंदे, हाँ पता नहीं तुहानू इहदे नाल की प्यार है, नहीं। अगर आज की सख्ती उस पर हुई होती तो शायद मूसा निकल आता, आज की सख्ती हुई होती तो शायद सैमुअल निकल आता, आज की सख्ती अगर हुई होती तो शायद ओबेद, यसी और दाऊद निकल आता। क्या जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी माँ जो थी बड़ी जालिम थी, वो जाके जंगला च फिरते आए, वो कपड़े भी नहीं वो देखो सोड़ते आए, माँ को फिक्र ही नहीं थी। लेकिन माँ खुदा के इरादे को जानती थी, किसको जानती थी, खुदा के इरादे को जानती थी कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये खुदा का इरादा है, और मैं खुदा के इरादे में हाइल नहीं होगी, और खुदा सरफराज करेगा। और पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए क्या लिखा है, जितने औरतों से पैदा हुए, कितने औरतों से पैदा हुए, पूरी दुनिया किससे पैदा हुई है, और कह रहे जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। कितनी अजीम हस्ती कि उससे बड़ा जो है कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ, सिवाय यीशु मसीह। सिवाय यीशु मसीह के बाद अगर इस जमीन पर दूसरा कोई दर्जा आएगा ना, तो वो उसी का है। सिर्फ क्या था कि माँ ने क्या की थी, जो खुदा की मर्जी थी, ना सिर्फ उसको जाना था, उसके बीच में हाइल भी नहीं होने की कोशिश की थी। लेकिन कई बार कुछ माएँ करती क्या, हम देखते हैं कि माँ जो है ना वो कई बार कुछ और काम करवा जाती है। आज शौहर आता है घर पर, बाप आता है घर पर, काम से आया है, उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, थोड़ा सा, लेकिन
अच्छा बीवी भी और मोस्टली तौर पे ड्रामे देखे ठक 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 लड़ाइयाँ चल जाती हैं घर पे उनको वो आखिरी सीन रह गया एक मिनट जरा देख के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਗਏ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ कि क्या कर रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम किसको सिखा रहे हैं अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और फिर हम तकाजा रखते हैं कि ये बच्चे हमारी इज्जत करें कैसे करेंगे इज्जत क्योंकि हमने सिखाया नहीं जो माँ बाप करते हैं ना वो औलाद से वैसा ही पाते हैं एक पता है एक बड़ी जबरदस्त माँ है और वो कौन है हेरोदियास कौन है हेरोदीस बादशाह का भाई फिलिपस उसने अपने भाई की बीवी को लेके क्या कर दिया अपने पास रख लिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके ऊपर उंगली उठाई है ये तूने मकरू काम किया है ये तूने गलत काम किया इसके बाइस जो है तूने खुदा की बड़ी नाफरमानी किया और उसके अंदर जो है वो चाहती क्या थी अब वहां पे लिखा है कि मत्ती 14 की 8 में लिखा है हेरोदियास जो है ना वो अपनी बेटी को कुछ कह रही है क्या रही है उसने अपनी माँ के सिखाने से किसके सिखाने से अपनी माँ के सिखाने से कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे किसने सिखाया है माँ सिखाती है अच्छा तेरी सास तेरे ना जे खाती तेरा बंदा तेरे ना चल बन अपना सामान बन चली कि क्या सिखा रहे हैं हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम ये नहीं सोच रहे कि उसको ये बताना है कि जो बुजुर्ग कहते थे कि तेरी इस घर चो आज की गई है लाश गई है वापस आना है तो बंदे दे नाल आई वरना ना आई अब हम जो हैं जैसा सिखाएंगे वैसा ही पाएंगे आज मैं अपने बेटे या बेटी को उसके घर वालों उसके ससुराल के साथ जो है इस तरह का रवैया करना सिखाऊंगा तो कल को जो मेरे घर पे बेटी आई है वो मेरे साथ क्या करेगी और मैं चाहता हूं कि वो मेरी क्या करे इज्जत करे हम इस छोटे से धूल से खुश हो जाते हैं ओ मदर डे आपकी पूरे एक ही दिन वो रिलीज डे वो नाफरमानी के डे वो हम मुख्तलिफ तौर से उन चीज़ों के पीछे रागिब होते हैं जो नहीं आपको बताऊं वैसे एक नॉर्मल सी बात पूछते हैं कि वाकई किसी बेटी का शौहर जो है वो हो लड़ाका वो हो फ्रॉडिया दगाबाज वो हो शराब पीने वाला वो हो लड़ाई झगड़े करने वाला वो डाकू भी हो सारा कुछ तो अब ऐसा कुछ होने पर जो है वो माँ बाप जो है वो क्या कहते हैं आज मैं छाट पड़ा मैं पहला तू अपना बोरिया बिस्तरा कवर कर तो चल लेकिन इसके लिए एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत बात कलाम खुदा में जो है वो पहला पतरस ये हवाला जरा निकालिएगा बहुत प्यारा हवाला है पहला पतरस और उसका 3 बात इसमें इतनी गहराई की बात खुदा ने कह दी है कि वाकई फिर शायद घर दबाना हो मैंने जो है यहाँ पर जो है बेटा है मैंने उसके हाथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और मैंने कहा कि भाई वहाँ जाके उनको पहुँचा के आ जाए अब वो वहाँ पर गया है और उसने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए हैं लेकिन उन्होंने उसकी ना सिर्फ बेइज्जती की है बल्कि डॉक्यूमेंट उठाकर फेंक दिए भाई वो तो उन्हें नहीं जानते थे वो जानते किसको थे तो बेइज्जती उसकी हुई या मेरी हुई बेइज्जती तो मेरी हुई ना तो फिर मैं उसके साथ वो पता लगता है उठाओ ही लड़न लाग पई ओ भाई तेरे किसी नहीं लिया ना उन्हें तेरी इज्जत नहीं की थी उन्हें डॉक्यूमेंट छोड़ चढ़े कुछ भी वापिस आ जाओ मुझे बता दे क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं था उसने बेइज्जती अगर की है तो वो मेरी की आपकी नहीं की और यहाँ पर भी कहने वाला कौन है खुदा कहता है औरत को कि तुम्हें करना क्या है जे तेरे ना औंजदा रवैया नहीं होता तो बेइज्जती की हुई किसकी बेइज्जती हुई खुदा की बेइज्जती हुई ना तो फिर खुदा खुद फैसला करके किसी को मुनसब मान कर देगा हम यहाँ पर आप ही कहने अपने काम आप ही सीधे कराएंगे हम कहते हैं कि अब यहाँ पे पढ़े देखे लिखा गया तीसरे बाप की पहली आयत है आए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के काबिल रहो
इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो, किसको ना मानते हो? तो कलाम को ना मानने वाले कौन होंगे? अगाबाज, लड़ाका, फ्रॉडिया, शराबी, नशाबाज, जुआ खेलने वाला, यही सारे हैं ना जो कलाम को नहीं मानते। गिरजे तो बाहर ही बैठे हो, उनका गिरजे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता या खुदा से। और वो क्या है? जो कलाम को ना मानते हो तो भी, खुदा क्या कह रहा है? तो भी वो शराबी है, तो भी वो लड़ाका है, तो भी वो जुआरी है, तो भी वो किसी भी तरह की कबाहत में, लेकिन तेरे सर पे उसे कायम किसने किया है? कायम किसने किया है? खुदा ने कायम किया ना। तो कहता है तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन। अब चाल चलन क्या है? चाल चलन ये है कि मैंने तुझे उसकी ताबेदारी के लिए कहा है ना, तो तू कर। वो तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो मैं देख लूंगा। उसके अंदर तेरी बनिस्बत डर और खौफ पैदा करना मेरा काम है। जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता। क्यों हम भूल जाते हैं कि कहने वाली जात कौन है? वो खुदा की है। खुदा ने कहा है कि तुम क्या कर, वो तेरे साथ जुल्म करता है, वो कुछ भी करता है, उसका फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। अब आगे बढ़ो। कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के, अच्छा ये जो बाइबल है ना, यकीनन ये जिंदगियां बदलती है, लेकिन इसके मुताबिक आप लोग की ताबेदारी है। वो कह रहा है बगैर कलाम के, कलाम नहीं सुनाया, कलाम के वसीले से उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। आई कैसे है? लिखा है बगैर कलाम के ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर। किसको देखकर? चाल चलन। अच्छा खौफ के राजी वो तो मेनू मारता था, वो तो मेरे को कितने डालता है। वो डर जो आपके लिए, वो इज्जत जो आपके लिए उसके अंदर होनी चाहिए, वो कौन पैदा करेगा? आपके चाल चलन के बायस खुदा उसके अंदर पैदा करेगा। वो कह रहा है बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। किसकी तरफ खिंच जाएंगे? अरे भाई हम बाइबल से बहुत सारे दुनिया के लोगों को खुदा की तरफ लाना चाहते हैं, और खुदा कह रहा है इसी के मुतरादफ एक और चीज है, तुम्हारा पाकीज़ा चाल चलन है। वो तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन को देखकर खुदा की तरफ खिंच जाए। और अब देखिए, ना सिर्फ आपके चाल चलन से आपकी अपनी जिंदगी आसान होगी आगे चल के, लेकिन सबसे बड़ी चीज वो आपकी वजह से बच जाएगा। वो कहता है जो नेक औरत है ना, बीवी के सबब से कौन बच जाएगा? मर्द बच जाएगा। और अगर जो अच्छा शौहर है उसकी वजह से कौन बच जाएगी? बीवी बच जाएगी। हम दोनों एतराफ देखते हैं कि हम लोग, लेकिन आज हम क्या होता है, बंदे को काबू रखना हो तो की सोचते हैं कैसे रखा जाए काबू? हाँ जबरदस्त खाने आते हो, फिर क्या होता है? तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर कूदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हित और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। ये गारंटी है कि आपको खाने अच्छे बनाने आते हैं, आप खूबसूरत हैं, आप सिंगार अच्छा करते हैं, बंदा तो नहीं होके रहेगा। गारंटी है क्या? ये इस चीज की जमानत है? नहीं। यकीनन औरत को अपने शौहर के लिए सजना संवरना है, अपने शौहर के लिए और बहुत सारी लवाजमात करने हैं, लेकिन गारंटी एक ही चीज है कि खुदा जब आपके पाकीज़ा चाल चलन को देखता है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो उस शौहर को, जिसको दुनिया शायद खादम तब्दील ना कर सके, आपका चाल चलन तब्दील कर देगा। और जब ऐसी चीजों को वो तब्दील कर सकता है तो फिर औलाद कैसी होगी? जब मैंने हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में अपने बच्चों को ये सिखाया है कि बेटा मेरे साथ, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे चाचा हो, चाहे फूफो हो, कोई भी हो,
उन्होंने मेरे साथ अगर ज्यादती की भी है तो तुमने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना। और फिर आगे औलाद कैसी होगी? दुश्मनों को भी माफ करने लगे। हालेलुया। अब चले, यीशु को तो पता था कि मैं कौन हूं। यीशु को तो पता था ना कि मैं कौन हूं, और जो कुछ यीशु के साथ हो रहा था यीशु तो वो जानता था, लेकिन मुकद्दसा बनी क्यों बर्दाश्त करेंगे? हैं? वो यीशु को धक्का देने लगे तो उसे मुकद्दसा बनी में क्यों नहीं किया कि तुसी सारे इन्हें सारे पूरा करो, पै जाओ इन्होंने। जब हम अपनी औलाद के उन भेदों को जो खुदा उनकी और हमारी जिंदगी में रखता है हम समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर सब्र भी आ जाता है, तहम्मुल भी आ जाता है, बर्दाश्त भी आ जाती है। और जब ये चीजें निकल जाती है ना तो फिर जिंदगी अजीबन बन जाती है। हम अपने तौर से अपनी औलाद को, अपने लोगों को अपने हक में अपनी इज्जत, अपनी भलाई के लायक नहीं बना सकते। लेकिन याद रखें, आप खुदा के काम को कहते हैं तुसी मेरे बच्चों की फिक्र करो, मैं तेरे बच्चों की फिक्र करूंगा। भाई आप मेरे बच्चों की, खुदा के बच्चे कौन है? लोग कलीसिया कहता है मैं क्या था? नंगा था और तुमने मुझे लहरा ठेका लिया। मैं प्यासा था तुमने मुझे, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया। याद रखिए, कोई भी जान एक राई का दाना किसी दूसरे इंसान को ना खिला सकती है, ना उसकी मदद कर सकती है। जो कुछ आपके हाथों से होने जा रहा है, याद रखिए कि खुदा ही की मर्जी है। भलाई किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से, इंसान की तरफ से भलाई। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कौन जुदा ना करे? आदमी। कौन जुदा ना करे? आदमी है कौन? हु इज आदमी? आदमी कौन है? अगर हम मुकाशवा उसके 13 बाब को देखें तो कहता है कि ये आदमी का अदद है, जो समझ रखता है वो जान ले कि वो क्या है। 600 किसका अदद है? आदमी का। और वो उस वाले आदमी की बात कर रहा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। वो वाला आदमी हमारे अंदर आके इस पाक रिश्ते को तोड़ना चाहता है, वो इसके अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। और हम जान जाए कि उसने कहा है उस आदमी को अपने अंदर इजाजत ना दे देना, वरना वो आदमी ताकि जिंदगी की कर देगा, तबाह कर देगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अब मत्ती की अंजील में खुदा यीशु मसीह एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, इसको हम देखते हैं। मत्ती की अंजील 15 बाब और उसकी 4 आयत में, क्योंकि खुदा ने फरमाया, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन आप इसे यहूदी जाते हैं, यीशु कह रहे हैं मगर तुम कहते हो। कौन कहते हो? तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुम अपनी रिवायत से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया है। हम कहते हैं जिस चीज से, अच्छा सानू सारे फायदे माँ प्यो को चाहिए, लेकिन हमने जो फायदा देना है वो कहते लो मैं यकी देश अगे मेरे को हुण रहा ही कुछ नहीं है ते हुण तुहानू मैं की दवां, मैं की दिया है, मैं यकी दिया है। तो भाई मैं यकी दिया तो आपने खुदा के उस कौल को, उस फरमान को, उसको पूरा किया है कि वो आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाएगा। लेकिन माँ बाप की जो जिम्मेदारी थी, हाँ वो बुढ़ी ने नवे कपड़े आ सकते हैं, बीवी की सारी लवाजमत पूरी हो सकते हैं, बच्चों के लवाजमत पूरी हो सकते हैं, लेकिन एक माँ और एक बाप को ही कुछ नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही है ना, एक फूल, ये जो फूल है ना कितने का आता है? वैसे फूल जो मदर डे पे हम अक्सर देते हैं 50 का 100 का, हाँ? लेकिन काश के उस दिन हम कुछ ऐसा तोहफा भी दे सकते हैं जो कि, लेकिन वो तोहफा मान दे देता तो बुढ़ी को केड़ा सामने का।
बड़ा औखा काम हो जाए। उधर देने पर तूने टेंशन क्रिएट हो जाती है कि तूने माँ को जो है आज पता नहीं वो 2,500-3,000 का 5,000 का सूट ला के दे दिया है, तेरे मैं नहीं नजर आई। आज देखिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ऐसे लोग, ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। आसा बादशाह जो है उसने क्या किया? आसा बादशाह जो है दाऊद की औलाद में से है। सलातीन, पहले सलातीन 15 बाप और उसकी 11वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। लिखा है और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। और उसने अपनी माँ, किसको? अपनी माँ मेका को भी मलका के रुतबे से उतार दिया। माँ को जो है मलका की माँ, और उसने कितनी बड़े, कैसा लगता होगा कि एक बेटा आके माँ को बोला अब ये तेरा इख्तियार नहीं रहा, साइड पे हो जा, अब तू मलका नहीं। कैसा लगेगा माँ को? बड़ा बुरा लगेगा ये बात। लेकिन ये सोचे कि माँ ने क्या किया जिसकी वजह से आज खुदा उसके साथ ऐसा करवा रहा है। लिखा क्या है? मलका के रुतबे से उतार दिया क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया। किसने? उसकी माँ ने बुत बनाया था। बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादिये कदूर में उसे जला दिया। जब हम खुदा के मुखालिफ हम चल रहे होंगे तो फिर जब खुदा हमारे खिलाफ औलाद को खड़ा कर देता है फिर हम कहते हो ये तो बड़ी टेंशन है। लेकिन क्योंकि कई बार हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं। और याद रखें यहाँ पे जितने भी वो लोग मौजूद हैं जिनकी माँ और बाप हयात हैं, आज समझ लें जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे। क्या हम मूसा पैदा कर रहे हैं, सैमुएल पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे उबैद जैसी मूसा पैदा हो रहा है, यहूदा पैदा हो रहा है, जहाँ हम यीशु की मानित बनने के लिए किसी को तैयार कर रहे हैं? पालूस रसूल कहता है जैसे मैं मसीह की मानित बना तुम मेरी मानित बनो। आज क्या हम मसीह की मानित बनना चाह रहे हैं? तो मसीह की मानित यही है ताबेदारी, हिल्म, बर्दाश्त, सब्र और अपने आप को पस्त करना। और अपने आप को पस्त करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तू बड़ा बलवान है, हाँ? लेकिन तेरू वेखला करना। आज हमारे घरों के अंदर इतने तफरके, आज हम चर्चों और कलीसियों को एक करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या हमने एक करना? मेरे घर में जगह पता नहीं कितने सारे जो है पार्टीशंस बन गए, है ना? खुदा करे कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम अपने बाप और अपने माँ की क्या कर सके, इज्जत कर सके, ताकि फिर हमारी औलाद भी हमारी क्या करेगी? इज्जत करेगी, वो ताबेदारी करेगी, वो कभी हमें जो है रुसवा नहीं करेगी। हालेलुया। खुदा इस कलाम की वसीले से आपको और मुझे परिवर्तन दे।